अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को असला फराहम करने वाले ग्रोह को धर लिया। ये कहां पर असला सप्लाई करते थे और इससे क्या नुकसानात हुए और पुलिस इन तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने एक ऐसे खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ शूटर्स, जराइम पेशा अफराद को असला की सप्लाई करते थे, बल्कि गैर मुल्की दुश्मन अनासिर और ख़ास तौर पर दहशत गर्द तंजीमों को भी असला फराहम करता था। किस तरह से ये वो असले का कारोबार कर रहा था, किस तादाद में असला उससे बरामद हुआ, ये उसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी की ना है शराज भट्ट कितने दा रहने वाला है? डस्के दे सर। डस्के दा रहने वाला है जी सर। की काम करना है? असले का काम करने जनाब। अच्छा, कदों तो कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल होए? जी सर। सही है। किन्ने शुरू किया? छोटे भाई ने। छोटे भाई ने शुरू जी। किया 3 साल पहले? जी सर। ठीक है। ते तू बड़ा है? जी कितने सर। नंबर ते छोटा भरा? वो 6वें नंबर। कितना की ना है ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟ। ਹਸਨੈਨ ਭੱਟ। जी सर। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? जी सर। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ? जी सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸਲਾ? वो खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान शाह साहब को खैबर पख्तूनख्वा तो। ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨੇ? हाँ जी सर। ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਡਸਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਗਈ? जी सर। ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਮਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਮਟ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰ ਮੰਗਵਾਈ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮੰਗਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਸਰ। ਤੇ ਹਸਨੈਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜੀ ਸਰ। ਲੋਰੋਂ? हाँ जी सर। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਲਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ? ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਆਸਫ। ਆਸਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਿਰਫ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ? ਤੇ ਅਗਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਰੋ ਤੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ? ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ? 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ। ਕੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਬੱਚੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰੋ, ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਕਰੋ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਆਪੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਉਂਝ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ
ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਸਨੈਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਇਆ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉਸਲੇ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੜੀ। ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਛੜੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲੇ ਨਾਲ? ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮਮਨੂਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਨੈਨ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸੇ ਸਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ਼ੀਰ ਆਰਮਸ। ਬਸ਼ੀਰ ਆਰਮਸ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਬਸ਼ੀਰ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ? ਬਸ਼ੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏ ਖਾਲਦ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ, ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੜਾ ਸਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਗੇ? ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। 25-30 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 2-3 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ 18 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸਨੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਸਫ ਮੁੰਡਾ ਸਨੈਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਸਫ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਸਫ ਵੀ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਸਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗਲਤ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਹੈ ਵੇਚ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸਲਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਦੀ ਮੁਤਲਕ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹਾਲੇ? 2-3 ਸਾਲ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ ਅਸਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ? ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਤਾ, ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੁxtਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ। ਇਹ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਰ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਭ ਵਾਧੂ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30-40 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ। ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਅਸਲਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਬਾਇਸ है और नुकसानदेह है। लिहाजा मेरी अपील है सब अगे कि भाई वह काम ख़त्म कर दे। नाजरीन आपने इस मुलजिम की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से ये असला का काम जारी रखे हुए थे, गैर कानूनी तौर पर ये असला सप्लाई करते थे। वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस तरह से इस्तेमाल किया गया। मुल्क दुश्मन अनासर, दहशतगर्द तंजीमें और जराइम पेशा अफराद, शूटर्स भी इनका असला इस्तेमाल करते रहे। नाजरीन हमारे साथ एक ऐसा मुलजिम मौजूद है, आपने अक्सर सुना होगा डिलीवरी बॉय, लेकिन डिलीवरी बॉय तो अक्सर औकात पिज़्ज़ा लेके आता है, कोई खाने की चीज़ें लेकर आता है, लेकिन ये डिलीवरी बॉय असला लेकर आता है। ये डिलीवरी बॉय कहाँ कहाँ असला पहुँचाता है, क्या रेट हैं इसके, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन कौन सा असला ये कहाँ से लेता है और कहाँ पर ले जाकर उन्हें डिलीवरी देता है, उसके क्या चार्जेस होते हैं, ये इसी की ज़ुबानी आपको हम सुनाते हैं। हाँ भाई क्या नाम है? मोहम्मद मुमरेज़ जी। मोहम्मद मुमरेज़ कहाँ के रहने वाले हो? नौशहरा के जी। अटक नौशहरा। अटक नौशहरा का जी। ठीक है, तो क्या काम करता है ये? असला जो है ना नाजायज़ डिलीवरी जो है ना ये लोग देते हैं कि पहुंचा दो, हमें किराया देते हैं। ठीक है जी। अपना काम है असले का? नहीं अपना काम नहीं है सर। अच्छा, किसका काम करता है? ये उधर लोग हैं जो है ना वो देते हैं। कौन कौन लोग हैं? वो तो मेरी मोबाइल में उनके नंबर होंगे जी। अच्छा नहीं, जो तुम्हें देते हैं जिनसे तुम लेते हो, हाँ जी, लेके आगे देते हो, वो तो मोबाइल में नंबर होंगे ना जिनको देते हो जी, वो तो नंबर भी देते होंगे, असला भी देते होंगे कि ये फलां एड्रेस पे इस जगह पे पहुंचा दो जी। जो देता है तुम्हें देने के लिए देने के लिए वो भी मोबाइल में नंबर, एक का इरफान नाम है। हाँ इरफान हो। अच्छा। और एक का शहजाद नाम है। अच्छा, ये देते हैं जी, वहाँ से देते हैं? हाँ जी हाँ जी। तुम्हें असला दे देते हैं? हाँ जी। अच्छा जी। फिर आगे क्या करते हो तुम? आगे ये होता है कि फिर वो मुझे नंबर दे देते हैं जी। अच्छा। कि ये इस बंदे का नंबर है, ये इसको जो है ना ये पहुंचा दो, हमें जो है ना 4000 रुपये उसका किराया देते हैं पिस्टल का जी, और 7-8 हज़ार से 9 हज़ार तक हमें जो है ना राइफल का किराया देते हैं जी। अच्छा जी। मतलब ये तुम्हारे चार्जेस हैं? जी। 4000 रुपया पिस्टल पहुंचाने का लेते हो? जी। ठीक है, उसमें जो बस का किराया वो किसका होता है? वो खर्चा हमारे के ऊपर होता है जी। किस पे? हम वो उसी में खर्चा उसी में। तो कितना किराया लगता है वहाँ पे KP के से यहाँ पे लाहौर तक? वो किराया खर्चा हम नहीं करना होता है इसमें से जी।
वो कैसे करते हो? बस वो इसी में से किराया वगैरह जो ये हमारा किराया बनता है इसी में से देने होते हैं जी। और 4,000 रुपया जी तुम्हें मिल गया एक पिस्टल का जी। तो वो वहां से KPK से निकले हो, लाहौर आए हो, कितने की टिकट है KPK से लाहौर की? लाहौर लोकल से आते हैं जी। लोकल कौन बस पे? आधा खर्च हो जाता है, आधे बच जाते हैं जी। वो कैसे बचते हैं? वापस भी तो जाना होता है। बस लोकल से आते हैं जी। कौन से लोकल से? ये बसें वगैरह कहीं से टोयोटा गाड़ी इस्तेमाल की, कहाँ से बस इस्तेमाल की जी। अच्छा, हाँ जी। तो इतना रिस्की काम इतने थोड़े से पैसों के लिए करता है? बस जी मजबूरी के तहत ये गलत कदम उठा दिए जी। कब से कर रहा है ममरेज खान? ये कुछ तकरीबन 1.5 साल हो गए जी। बीच में छोड़ दिया था, फिर वालदा बीमार हो गई, उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए। अच्छा, उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए, फिर जो है ना इलाज के लिए जो है ना सिस्टम नहीं चल रहा था, फोत हो गई है जी। दोनों गुर्दे उनके काम छोड़ गए थे। तो कुलिया भी तो पक्के मुसलमानों वाला है, तो फिर भी इसके बावजूद ऐसे काम करता है? बस जी वो वालदा बीमार थी, उनके गुर्दे फेल हो गए थे, उसकी वजह से मजबूरन ये एकदम उठाना पड़ा कसम से। वो बीमारी तो आ जाती है, अल्लाह पाक शिफा भी देता है। और भी मतलब सरकारी अस्पताल भी हैं जहाँ से इलाज करवाया जा सकता है। गुर्दों का इलाज महंगा होता है जी। अच्छा, हाँ। तो कोई और रास्ता नहीं नजर आता था? इकलौता बेटा है वालदा का? मुझसे एक छोटा भाई है जी, वो भी बस यही मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी के साथ ड्राइवरिंग करता है जी। अच्छा, वालिद नहीं है? वालिद फोत हो चुका है जी। वालिद फोत हो चुका है? हाँ जी। वालदा भी फोत हो गई है, फिर तकरीबन 1.5 साल अदालत में रही है गुर्दे की। अच्छा, और उसके बाद फिर फोत हो गई है। वालिद तो तकरीबन 2010 में फोत हो गए थे जी। अच्छा, तो वालदा कब फोत हो गई? वालदा को फोत हुए जो तकरीबन कुछ 1.5 साल हो, साल 1.5 साल उनका भी हो गया तकरीबन। 1.5 साल हो गया। चलो वालदा फोत हो गई, पहले तो चलो मजबूरी सुना दिया, उसके बाद किस लिए करता? उसके बाद छोड़ दिया था सर, फिर बस छोड़ दिया था, फिर बस जो है ना गलती हो गई जी। फिर कैसे गलती हुआ? बस जी फिर आदत पड़ गया ना, मतलब इस तरीके से आसानी से कमाने का। राइफल ही ज्यादा पैसा छोड़ता है ना तुमको, उससे बचत होता होगा। पिस्टल तो फिर 2-2 4-4 लेके जाता होगा, डिलीवरी बॉय है। नहीं जैसे पिज़्ज़े भी मुख्तलिफ लेके जाता है बंदा, तो ऐसे 4-4 5-5 पिस्टल एक ही बार लेके जाता होगा? नहीं, 4-4 5-5 नहीं लेके जाते हैं जी। हाँ। बस एक पिस्टल होता है, एक राइफल होती है, या 2 पिस्टल होते हैं, एक राइफल होती है, और मुख्तलिफ लोग होते हैं जी, समझो। अच्छा, एक पिस्टल एक राइफल कट्ठी लेके जाते हो? कभी किसी के पास जो है ना, मतलब एक दफ़ा बार बार जाना नहीं होता। नहीं, वो तो मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते होंगे। हाँ ना? जी। अच्छा ठीक है, डिलीवरी जब लेके वहाँ से निकलता है, KPK से लेके निकलता है? नौशहरा से लेके निकलता है जी। ठीक है, पिस्टल लेके जा रहा है, तो पिस्टल कहाँ पे लगाता है? वो भी कार्टन में जी। कार्टन में रखता है? जी, कौन जी। से कार्टन में? ये जो आपको बताया, ये घी वगैरह का जो कार्टन होते हैं। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ उसमें डाल देता है? हाँ जी। तो और उसमें कोई चीजें नहीं डालता? नहीं जी, नहीं जी। खाली कार्टन में रख लेता हाँ है? जी। तो कार्टन कभी चेक नहीं हुआ? कार्टन कहाँ पे रखता है फिर? बस साथ में ही, जैसे आम ये पकड़ा होता है। वो कार्टन तो इतना होता है? बस ऐसे हाथ में पकड़ा होता है ये। कैसे पकड़ा होता है? ऐसे ही। ऐसे? हाँ उसके जी। तो कार्टन में तो वो ये ऊपर से पकड़ने वाला नहीं होता, वो तो डब्बे में होता है। शापर लगाया होता है ना ऊपर जी। अच्छा, शॉपर में, कार्टन शॉपर में डाला होता है? हाँ जी, छोटा कार्टन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किस चीज का कार्टन होता है? ये समझो शूज़ का कार्टन हो गया, हाँ या ये टॉफ़ी वगैरह का जो। हाँ, वो मिलता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें डाल लेता है जी। वो, फिर शॉपर में डाल देता है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब राइफल लेके जाना है बड़ा, जी। वो कैसे लेके जाता है? वो भी कार्टन ही होता है। अच्छा, कौन सा वाला? वो बड़ा होता होगा? हाँ, लंबा, थोड़ा लंबा होता है जी। घी वाला हो गया? हाँ जी, हाँ जी। और घी वाला हो गया। बस जो भी कार्टन मिल जाए, मतलब थोड़ा सा साइज उसका जो है ना, लंबाई होती है। नहीं, तो राइफल तो इतना लंबा होता है, उसको खोल के लेके जाता है? नहीं जी, खोलने का वो सिस्टम मुझे नहीं आता जी। अच्छा, खोलने का सिस्टम मुझे नहीं आता। ऐसे ही ले जाता है? तो डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? बहुत लगता है सर, खून रास्ते में लगता है सारे कभी रास्ते। चेकिंग नहीं होता? पुलिस तो रास्ते में रोक के वीडियो भी बनाता है, अक्सर औकात तलाशी भी हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब पकड़ा गया हो? बस अल्लाह के डर बहुत लगता है जी। जब तक सामान ना दिया हो तो वहाँ तक
समझो डर ही डर डर ही डर डर ही डर लगता है जी। अच्छा, वहाँ से निकल पड़ता है नौशहरा से, कहाँ कहाँ पे डिलीवरी दी है? डिलीवरी यही मुख्तलिफ इलाके होते हैं, समझो गुजरात हो गया, गुजरावाला हो गया, कामुकी हो गया, और ज़ाला मूसा हो गया, अच्छा, जेलम हो गया। सही। मतलब वो लोग जो है ना, समझो घर मार उनका होता है तो वो रोड के ऊपर निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं बाहर। कहीं पे। हाँ जी, बाहर रोड पे आ जाते हैं। रोड पे आ जाते हैं। नंबर होता है उनका? हाँ जी। आप राब्ता करते हैं? हाँ खुद जी। राब्ता करते हैं? वो जो सामान देते हैं वो भी राब्ता करते हैं जी, उनको बता देते हैं कि भाई ये हमारा बंदा आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, हुलिया बता देते हैं तुम्हारा? शायद बता देते हैं जी। नंबर भी दे देते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर वो राब्ता करते हैं तुमसे? हाँ जी। फिर वो रोड पर निकल आते हैं, बस अपना पार्सल लेके चले वो जाते हैं। पार्सल उन्हें दे के तो वापस चला जाता है? हाँ जी। सही है। कुछ पैसे भी लेके जाता है उनसे? पैसे मेरे हिसाब से उन्होंने ज़्यादातर जो है ना पहले दी हुई होती है जी। वो हाँ कैसे जी। देते होंगे वो पैसे? उनका आपस में होता होगा, ऑनलाइन जैस कैश कर देते हैं? जो भी राब्ता होगा जी उनका। अच्छा, वो भेज देते हैं हाँ जी। उनको पैसे? जी। जो पैसा मिलता है वो जिससे असला लेके आता है वो ही देता है तुमको? हाँ जी। जो जाते हुए दे देता है वो पैसा? हाँ, अगर इधर ये दे देते हैं, उनको बोल देते हैं कि भाई ये डिलीवरी का जो बंदा आ रहा है इसको मतलब 4-5 हज़ार रुपये ये दे देते हैं, ज़्यादातर अक्सर औकात ये दे देते हैं। ये दे देते हैं? हाँ जी। सही है। कम व बेश ऐसा होता है कि यहाँ ना मिले तो फिर वो हमें वो दे देते हैं। सही है। तो नाजायज़ी असला ज़ाहिरी सी बात है इस तरह तरीके से लेके आता है, जायज़ असला तो नहीं है ना, ये नाजायज़ है। ये सर जो ये लोकल सामान लेके आते हैं, ये तकरीबन जो सामान लेके आते हैं इनमें से बहुत ज़्यादा लोगों के लाइसेंस नंबर लगे होते हैं जी। वो कैसे लगते हैं? डिलीवरी इस तरह से थोड़ी मंगवाएं फिर जो तरीके से लगे होते हैं सर। वो में भी पकड़े जाओ। वो जो है ना उनके नंबर पंजाब के होते हैं, KPK के नहीं होते ना, तो ज़्यादातर तकरीबन 80% जो है ना उनके लाइसेंस नंबर लगे होते हैं। वो लगाते हैं या नहीं लगाते? असला पता है किस किस काम में इस्तेमाल होता है? किस काम में इस्तेमाल होता है असला? असला किस लिए इस्तेमाल होता है? सर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया खुद। वो देखा तो है ना दुनिया में क्या होता है असले के साथ। मैंने के बच्चे हो, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है जी। डिलीवरी देता है, खुद नहीं इस्तेमाल किया, लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जाहिर बातें करते होंगे जी। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लोगों की जान लेते हैं, गलत करते हैं। कत्लो गारत होती है। तुम उस चीज़ की डिलीवरी पहुंचाता है जिससे लोग मरते हैं, कत्ल होते हैं। किसी का भाई मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, कोई बेवा हो जाता है, कोई यतीम हो जाता है, तो सिर्फ 4,000 रुपये उसकी पैसे ले लेता है। बड़ी गन होती है 8,000 रुपया ले लेता है। कभी सोचा कि क्या कर रहा है? अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए कई माओं की गोदें उजाड़ दी होंगी, तो बची वालदा फिर मतलब मेहनत की, अगर उसके लिए ये काम किया, मजबूरी में किया, तो मिल गई। मतलब जाना है, हर बंदे ने चले जाना है एक दिन। तो ये तरीकाकार थोड़ी है। जितने लोगों की वालदाएं बीमार हैं या वालदैन बीमार हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनको ये मशवरा दोगे कि वो डिलीवरी करें असले की? गलती की है सर। कैसे पकड़ा गया? इधर मेरी तरफ देखना। सियालकोट से जी। अच्छा जी। क्या कर रहा था वहाँ पे? वहाँ ये असले की डिलीवरी दे रहा था जी। अच्छा, किसको? उसका नाम था, नाम तो हमें नहीं बताते, नंबर दे देते हैं ना। चलो नंबर दे दिया, हाँ उसके जी। पास पहुंचे। हाँ जी। ठीक है, आगे क्या हुआ? बस उसको सामान दिया, फिर उधर पकड़े गए जी। कैसे पकड़े गए? बस साहब लोगों ने पकड़ लिया। फिर वहीं पे थे, उसके इर्द गिर्द थे हाँ सब जी। लोग? हाँ जी। वो पहले से पकड़ा हुआ था उन्होंने? नहीं, वो तो पहले से पकड़ा हुआ नहीं था। हाँ। उसने तो सामान लिया है जी। अच्छा, हाँ तो जी। तुम सामान दे के वापस नहीं गए? हाँ जी। सामान दे के वापस नहीं गए? मैं उधर ठहरा हुआ था जी, वो खाना लेकर आए, बस इतनी देर लगी है। मैंने बस, वो कहता यार आप खाना खा लें, बस मैंने खाना खाया है। अच्छा, क्या लेके गए थे आखिरी डिलीवरी जब पकड़े गए? वो ये था अपना, ये पिस्टल जो होता है। कौन सा? ये MP5। MP5? हाँ जी। कितने का होता है? पिस्टल ये तकरीबन 15,000 का, वो सेम। अच्छा। हाँ जी, वो MP5 होती है, पिस्टल का बोर होता है। अच्छा जी। 30 बोर की, वो जो बड़ी होती है।
शी टाइप जो गन होती है? नहीं जी, बस पिस्टल से थोड़ी सी बड़ी होती है, बस वैसे शेप सा बना होता है उसका जी। अच्छा, हाँ जी, पिस्टल ही होता है। वो कितने का होता है? ये तकरीबन 15,000 का, 17,000 का। वो तो बेचते वो लोग हैं ना, हमें तो डिलीवरी के साथ। नहीं, वैसे रेट का तो पता है ना तुमको? यही होता है जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो उसका कितना डिलीवरी की चार्जेस लिया तुमने? वो भी पिस्टल का ही जी, पिस्टल का ही होता है। 4,000 हाँ जी। दे के भेजा था उन्होंने पीछे से? हाँ 4,000 जी। दे के भेजा था कि उसने देना था जिसके पास खाना नहीं खा रहा नहीं था? नहीं, उसने नहीं दिया जी। हाँ, नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, बैठ के खाना खाने लगा? हाँ जी। तो पुलिस आ गया? हाँ जी। पुलिस ने पकड़ लिया जी। फिर क्या क्या बरामद हुआ? पुलिस ने मजीद क्या बरामद करवाया? तुमसे भी तो असला बरामद हुआ है ना? मेरे पास जो एक राइफल थी 12 बोर की जी। अच्छा, वो कहाँ पे थी? हाँ जी, वो कहाँ पे थी 12 बोर की राइफल? वो साथ में थी ना जी। अच्छा, जी। वो कहाँ पे लेके जानी थी? वो गुजरात देनी थी जी। अच्छा, और उसके साथ 3 पिस्टल थे जी। 3 पिस्टल। अब देखो ना, वो सारी बातें निकलना शुरू हो गई। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हारे पास जो असला है जी। वो एक करके थोड़ी तुम लाते हो। तुम मासूम बन रहे थे, तुम तो 3-3, 4-4, 5-5 चीजें अपने साथ रख के अच्छी खासी कमाई करते हो। 3 पिस्टल का कितना बन गया? 4,000 के हिसाब से 12,000, एक राइफल 8,000, मतलब 20,000, 21,000 एक टूबर में तुम दिहाड़ी लगा लेते हैं। बस ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, आधा खर्चा क्या हो जाता है? अब तो टिकट भी सस्ता हो गया, पहले तो मासूम बन रहा था ना, अब तो आने जाने का खर्चा हो गया, 4,000 खर्चा हो गया। हर वक्त टिकट का नहीं पता कितने की मिलता, तुम आते तो उस पे। हर दफ़ा नहीं होता जी इतना। हाँ, हर दफ़ा इतना नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। कम होता है माल। और समझो रोज़ का भी नहीं होता। अच्छा, हफ्ते में एक दफ़ा आना पड़ जाए, या 10 दिन में एक दफ़ा आना पड़ जाए, या ऐसा भी होता है महीने में भी एक दफ़ा आना पड़ जाए। इस तरतीब से होता है। गोलियां, ये तो हो गया पिस्टल, असला, राइफल। गोलियों का इतना इशू नहीं होता जी। गोलियां थी जी, मिकदार का तो पता नहीं है। गोलियां थी जी। गोलियां थी? हाँ, मिकदार का उनको पता होता है जो सामान बेचते हैं जी। गोलियां भी थी? हाँ, बस हम तो वह पकड़े गए वहां से। पकड़े गए। और भी असला वहां से पुलिस ने फिर बरामद करवाया तुम्हारे अलावा वहाँ से? हाँ, बस मुझे तो उठा लिया है, फिर उन्होंने बरामद किया होगा जी, सियालकोट से। हाँ जी, हाँ जी। वो साथ दूसरा बंदा भी पकड़ा गया ना, जिसको असला देने आया था। उसे क्या देने आया था? किसको जी? जिससे देने आया था डिलीवरी, क्या डिलीवरी देने आया था? वो तो सर मैंने बताया MP5 थी ना, पिस्टल था 30 बोर का। बस एक ही? हाँ जी। अच्छा, जी। पहले भी दिया था उसको? इस बंदे को पहले नहीं दिया था जी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे फिर पकड़ा गया? हाँ जी। सही है। तो उन पता लगा फिर पुलिस ने बताया तुम्हारी गोलियों से, तुम्हारे असले से क्या हुआ? पता लगा? ये बता रहे हैं कि वो जो सामान लेकर आए थे उसमें कुछ मर्डर हो गए जी। मर्डर हो गए? हाँ जी। अच्छा, कुछ मर्डर हो गए तो कोई बात नहीं है? नहीं, मुझे इल्म नहीं है सर जी। नहीं थे, कोई खास बात नहीं है ना, कोई कत्ल हो जाते हैं, खैर है। तुमने डिलीवरी दिया तो क्या हुआ? कत्ल हो गया, किसी की माँ का बेटा कत्ल हो गया। मुझे इसका इल्म नहीं है जी, किसने किया? किसी बीवी का शौहर कत्ल हो गया, तुम्हें क्या है? किसी बच्चे का बाप कत्ल हो गया, क्या है? तुम्हारा तो कमाई चल रहा है ना। पहले तो मजबूरी बता दिया, अब तो मजबूरी भी कोई नहीं, आदत पड़ गया। ऐसे तुम्हारी तरह और भी बड़े डिलीवरी बॉय होंगे। नाजरीन, ये डिलीवरी बॉय असला के डिलीवरी बॉय है। हम आज आपको एक ऐसा मुलजिम दिखा रहे हैं जो असलों को डिलीवर करता है, और ये काम, ये कारोबार बड़े अरसे से जारी है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी जो सोशल मीडिया की मदद से या रेफरेंस से असला मंगवा सकते हैं। आपको घर बैठे ही जो है वो डिलीवरी दी जाएगी, नाजायज़ असला, और लोग मंगवाते हैं। ये उसी की तफसीलात बता रहा है, और उससे फिर कत्लो गारत होती है। तो इस तरह से ये घिनौना काम जारी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो कर ली है। अब कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा है? बहुत पछतावा है जी। कितना पछतावा? बहुत पछतावा है। अच्छा, कोई हद नहीं है उस पछतावे की, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, अपने भी जो है ना घर वाले हैं। मुझे यार पछतावा है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे अपने भी जी। तो अब तक कितना का माल इस तरह से सप्लाई किया? हाँ जी। कितना का माल सप्लाई किया? कोई नहीं साहब, बस तकरीबन ये कभी 50,000 रुपये महीना हो जाता है, कभी 70,000 रुपये महीना हो जाता है, कभी लाख रुपये महीना हो जाता है।
बस। लेकिन कितना असला इस तुम्हारे महीने के चक्कर में कितना असला तुमने सप्लाई कर दिया, हज़ारों की तादाद में लोगों को तुमने असला दे दिया नाजायज़, और वो कत्लो गारत कर रहे हैं। गलत कदम नहीं उठाना चाहिए ज़िंदगी में जी, किसी किस्म का भी जो है ना गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ बातें इंसान के इल्म में होती हैं, कुछ इल्म में नहीं होती है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी भी ज़िंदगी में जो है ना गैर कानूनी तौर पर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्जिम को अब पछतावा है कि उसने जो काम किया वो गलत था। अब उसका कहना है कि कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उसका ये भी कहना है कि कभी वो 50,000, कभी 60,000, 70,000, कभी लाख, तो वो हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों की दहलीज पर, उनकी मुकामात पर जो है वो असला उन्हें फराम कर चुका है। ये नाजायज़ असले का कारोबार किस तरह से पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, ये बेनकाब हो चुका है। फ़िलहाल पुलिस ने इस मुल्जिम को गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की है और मज़ीद इस ग्रोह के मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया है जो कि दहशतगर्द तंजीमों और मुल्क दुश्मन अनासर तक को असला फराम करते थे, जिससे कत्ल व गारत गिरी का एक बाज़ार गर्म था। ये ग्रोह जब से गिरफ़्तार हुआ है तब से इन वाक़यात में कमी आई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़ीद ऐसे ग्रोह और इनके मज़ीद जो साथी हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए भी मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और जल्द ही अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतर होगी, क्योंकि ये ऐसे अनासर हैं इनकी गिरफ़्तारी के बाद जो जराइम पेशा अफराद को सहूलियात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हम भी दुआ गो हैं कि ऐसे तमाम मुल्ज़मान गिरफ़्तार हों और हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बनाए और इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले कोई भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों बार ज़रूर ये सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मॉडल टाउन सैयद हसनैन हैदर मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये दहशत गर्दों को असला फराम करने वाले ख़तरनाक मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आपने वक्त दिया। हसनैन साहब, ये दहशत गर्द तंजीमों, गैर मुल्की एजेंसियों को असला फराम करने वाला एक ग्रोह पकड़ लिया आपने, किस तरह से पकड़ा, तफसीलात हैं क्या, और ये कौन कौन सी दहशत गर्द तंजीमों को असला फराम करते थे, कैसे इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और क्या कुछ बरामद हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि IG साहब पंजाब और CCP साहब लाहौर का विज़न है कि लाहौर में क्राइम ख़त्म करें और पंजाब में जो शूटर, बत्ताखोर और जराइम पेशा लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो इसी तरह हमें पता चला कि कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो कि मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस हैं। अच्छा, सही। तो उस पर वर्क करना शुरू कर दिया मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़। तो इस तरह हमने, जो आपको पता है CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने शूटर्स पे और दहशतगर्दों पे बहुत वर्क किया। इस तरह पता करते करते हमें पता चला, हमने चेक किया कि इनको असला कौन सप्लाई करता है। सही। तो मुल्क दुश्मनी में जो मुलव्वस हैं उनके रिकॉर्ड वगैरह चेक किए, दहशतगर्दों के रिकॉर्ड चेक किए और चेक किए इनके लिंक्स किन किन के साथ हैं। तो इस तरह में पता चलते चलते पता चला कि एक ऐसा गिरोह है जो कि असला ला के तो मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों को, शूटर्स को और जराइम पेशा लोगों में असला फ़रोख्त करता है। सही। तो इस तरह जो फ़रोख्त करता था उसका बेसिक तल्लक डस्का सियालकोट से है। डस्का सियालकोट से? जी। सही। ये दो लोग हैं, हसनैन और शिराज भट्ट। इन्होंने आगे 2 दुकानें इनकी डस्का में असले की। अच्छा।
जी, ये असला के डीलर हैं। असला के डीलर हैं छोटे मोटे। का नाम बशीर सन्स के नाम से, आर्म्स के नाम से है, दूसरी खालद आर्म्स के नाम से दुकानें हैं इनकी अलग-अलग। और इन्होंने एक मुलाजम आगे आसिफ रखा हुआ है जिसका और उसने इनका मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन नासर जो कि मुल्क दुश्मनी के मुख्तलिफ वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं, उनके साथ इनके रवाबत और तल्क़ात साबित हुए। अच्छा। तो उधर चेक करने पे पता चला कि ये असला इनका KPK के इमरान शाह नामी शख्स है नौशहरे का, जो कि असला इनको सप्लाई करता है। मतलब लोकली बनता है ये, KPK में बनता है? KPK में जी तैयार किया जाता है। KPK में तैयार किया जाता है। अच्छा। वो हमें इत्ला मिली कि KPK से वो लाहौर में इनको असला सब देता है और लाहौर से ये लेके आगे सियालकोट दस्का में जाते हैं। इस इत्ला पे हमने वर्क करना शुरू किया। तो हमारी टीम में ऑलरेडी काम कर रही थी। तो एक टीम हमारी ग्रीन टाउन के इलाका में मौजूद थी, इन्हीं की तलाश में। पता चला था कि ग्रीन टाउन में असला इनका आता है। ग्रीन टाउन क्योंकि कंजस्टेड आबादी है, उधर ज़्यादा जुराइम पेशा को छुपना और चीज़ें इस तरह की करना थोड़ा आसान है। सही। लाहौर की साइड वाली आबादियों में सही गुंजान आबादी है। तो उधर टीम चेक कर रही थी, मशकूक लोगों को चेक करते करते एक शख्स को उन्होंने गिरफ़्तार किया। तो उससे असला बरामद हुआ। तो उसको चेक करने पे उसने बताया कि ये मेरे पास मज़ीद असला और भी है। उससे पूछा असला किधर से लिया, 2 पिस्टल उसके पास थे उस वक्त। जब टीम ने चेक किया 2 पिस्टल लगाए हुए थे, लोड शुदा थे। तो उसने कहा कि साथ ही अभी ना मेरे पास और भी असला। पूछा किधर से लिया, तो कहता मेरे पास और भी मौजूद है। सही। वो चेक करने पर तकरीबन 6-7 बैग असले के पड़े हुए थे। वो बैगों में से चेक किया तो सैकड़ों की तादाद में राइफलें, पिस्टल और वो सारी चीज़ें, दूसरी गोलियां वगैरह, पंप एक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म का असला जो है वो उधर से बरामद हुआ। तो जिसके बारे में उससे दरियाफ़्त किया गया तो उसने बताया कि मेरा एक भाई है हसनैन और आसफ़ हमारा एक मुलाजम है जो कि उनके जुराइम पेशा लोगों से, मुल्क दुश्मन नासरों से, दहशतगर्दों से और शूटर से काफ़ी गहरे मरासम है। अच्छा, ये गिरफ्तारी के फौरी बाद के आपने तफ्तीश का आगाज़ किया? तो फिर गिरफ्तारी के बाद जब असला बरामद, इतना ज़्यादा उससे असला बरामद हो गया, तो फिर उससे पूछा गया कि असला तुमने क्या करना है, किसके बारे में, कोई आपके पास इजाज़तनामा, लाइसेंस, कोई दुकान तुम्हारी में इतना बड़ा लाइसेंस है कि इतना बड़ा असला रख सको? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। सही। तो फिर उसने बताया दरियाफ़्त करने पर कि ये असला जो है मेरा भाई हसनैन और आसिफ हमारा एक मुलाजम, उनके जुराइम पेशा से ताल्लुकात हैं और ये उनको असला फ़रोख्त करते हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। सही। असला सप्लाई करते हैं। असला पीछे से, आप जैसे मैंने आपको बताया कि KPK से इमरान शाह नामी शख्स वो उधर छोड़ के गया था असला, और ये गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा था कि मैं टैक्सी पे लेके तो निकल जाऊंगा। अच्छा, वो बैग जो थे वो सड़क किनारे ही रखे हुए? साइड पे एक दीवार के साथ पड़े हुए थे। जी, ये सड़क पे टैक्सी की तलाश में था। सही। तो जब उसने बताया ये सारी सूरत हाल है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, नजायज़ असला की। और ये बड़ी एक बहुत अचीवमेंट थी कि जो वो उसने बताया कि ये असला वो लोग दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मन नासर को और जो टारगेट किलर हैं, शूटर हैं, उनको सप्लाई करते हैं। और उसमें राइफलें भी इस तरह की थी जो कि टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाली, और पिस्टल वगैरह थे। तो सारा असला जब बरामद किया तो काफ़ी मकदार में असला था। फिर उधर ही पुलिस स्टेशन कंसर्न में उसके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई।
अच्छा, किस दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किए गए? असला आर्डीनेंस के तहत, नजायज़ असला आर्डीनेंस 13-20-65 जो। जी जी, ये तो साथ में टू भी लगती है ना। अच्छा, इसमें टूल लग हाँ जाती जी, है। ममनुआ बोर का भी, ममनुआ बोर का भी असला बरामद हुआ है। क्या कुछ बरामद हुआ है शायद? इसमें सैकड़ों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में गोलियां हैं, सही। और सैकड़ों की तादाद में है सारा वेपन जो है, राइफलें हैं काफ़ी मकदार में। कौन कौन सी? राइफलें 223 हैं, और पंप एक्शन हैं, तो गैर ममनुआ जो है। हाँ जी, गैर ममनुआ भी हैं, ब्रेस्टेड भी हैं, उनमें राइफलें की हुई, सही। और पिस्टल काफ़ी मकदार में, सैकड़ों की तादाद में पिस्टल भी हैं। सही। तो वो हो सकता है वो जो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अपने असला की दुकान पे लेके जा रहा हो, लेकिन असला की दुकान, उसके पास लाइसेंस नहीं था इतनी मकदार में असला रखने का, कैरी करने का। अच्छा, कैरियर का एक लाइसेंस होता है, इजाज़तनामा होता है कैरी करने का, फिर दुकान में रखने का भी एक मकदार में उसके पास लाइसेंस दुकान का होता है, उस लाइसेंस के मुताबिक उतना ही असला रख सकता है वो दुकान में भी। सही। उसके पास कम मिकदार उसके पास था ही नहीं कोई चीज़, जवाज़ ही कोई नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन थी इनकी कोई मतलब। दुकानें में बता रहा है कि हमारी 2 दुकानें हैं उधर, एक बशीर आर्म के नाम से और दूसरी खालिद आर्म के नाम से। इनके लिंक्स जो बताए जा रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ, शूटर्स के साथ, गैर मुल्की जो एजेंसीज हैं उनके साथ, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ ये मतलब उन्हें असला सप्लाई करने में पेश थे और काफ़ी अरसा से कर रहे थे। और जैसे आपने इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और असला भी उस तादाद में बरामद हुआ, क्या दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा इन पर दर्ज नहीं हो सकता? दहशतगर्दी इसमें लगती नहीं है, जिसने कोई एक्ट ऐसा दहशतगर्दी वाला नहीं अभी किया। सही। ठीक है, ये उस मुकदमे में जो मुकदमे होंगे जिनमें असला इनका इस्तेमाल होगा उन मुकदमों में जाएंगे, उनमें जो दहशतगर्दी का होगा या कत्ल का होगा उन मुकदमों में साथ जाएंगे ये। अच्छा, उसमें ये उस तफ्तीश में इन्हें उस तफ्तीश में इनमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सही है, उसमें इन्हें सजा हो सकती। हाँ बिल्कुल, सजा तो इसमें भी हो जाएगी। अच्छा, अब एक पिस्टल बरामद हो या जैसे इसके पास से सैकड़ों राइफलें, पिस्टल, जदीद असला, हज़ारों गोलियां बरामद हो गई, लेकिन 13-20-65 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो 13-20-65 अगर ये उस चीज़ का मतलब लाइसेंस पेश करता है, जैसे आपने बताया कि इसके पास वो लाइसेंस नहीं है और हल्का फुल्का इनका काम है, तो ये वो अदालत से फ़ायदा भी तो ले सकता है, बरी भी हो सकता है। देखिए, ये तो उधर प्रोसिक्यूशन का काम है, वो इंशाल्लाह ताला सज़ा दिलवाने तक लेके जाते हैं मुल्ज़म को। कोई चीज़ ऐसी एविडेंस नहीं छोड़ेंगे कि इसको सज़ा ना हो, इंशाल्लाह ताला सज़ा तक लेकर इसको जाएंगे, सज़ा होगी। अच्छा जी, समझते हैं कि अब ये जैसे ये गिरफ़्तार हुआ, गैर मुल्की एजेंसियों को असला फराम करना और मतलब दहशतगर्द तंजीमों को असला फराम करना और ऐसे जराइम पेश अफराद, शूटर्स को असला फराम करना, ये बग़ैर लाइसेंस के ही असला बेचते थे, महंगे दामों बेचते थे। असल में इनका फ़ायदा क्या था? ज़ाहिर सी बात है, जो नजायज़ असला किसी को देता है वो असल रेट पे थोड़े देता है, वो महंगे दामों में ही होता है। फिर इस तरह के जो तंजीमों को या दहशतगर्दों को या मुल्क दुश्मन अनासर को देता है वो तो काफ़ी ज़्यादा कीमत में देता है। सही है। सिर्फ इनको गिरफ्तार करके वो चीज़ें बरामद कर ली गई हैं, अब ये जो बरामदगी है ये भी जमा करवा दी जाएगी या उसके बाद ये इसे वापस भी ले सकते हैं यही मुलज़मान? नहीं, वापस नहीं ले सकते। जो नजायज़ असला था वो वापस नहीं जाता, वो माल खाने में जमा होता है। सही। और वो जब ट्रायल चलता है, ट्रायल तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसी बेस पर उसको सजा हो जाती है एविडेंस पे। इसकी ज़मानत आप समझते हैं कि नहीं होगी? हाँ, उम्मीद तो नहीं होगी इतनी जल्दी ज़मानत। सही। और इसके भाई का क्या किरदार है? जो मेन मरकज़ी किरदार तो उसी का है, हसनैन, जिसका नाम है हसनैन भट्ट, उसका मरकज़ी किरदार है सारा। उसके रवाबित हैं इन सारे लोगों के साथ, उसके रवाबित हैं ज़्यादातर लोगों के साथ। और ये जो है वो सप्लाई लेता था, इमरान सप्लाई लेता है, साथ लेके जाता है। मेन वो जो है वो हसनैन है। हसनैन।
तो वो कहाँ पे है, मफरूर है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई गई? उसको भी इंशाल्लाह ताला पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा वो भी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है और उसको हैवान बना देती है। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर के सहूलतकारों ने चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों के साथ खेला। लिहाजा किसी भी किस्म की लालच करने से पहले ये जरूर सोच लें कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।